Hello students of class 10. Today we will discuss the lesson in English grammar. The name of chapter is Determiners. First of all, we will discuss its definition with example. Definition is determiners are the words which precede nouns and modify them. इसके जरिए हम इसके डिफिनेशन को क्लियर करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं. दिस बुक इज माइन. आप देख रहे हैं कि दिस का इस्तेमाल डिटरमाइनर के तरह हो रहा है क्योंकि यह नाउन के पहले यूज किया गया है. लेकिन दूसरे एग्जांपल में सम आर वीक, यहाँ सम का इस्तेमाल नाउन के पहले नहीं है. So students, as we know, determiners always use before noun. So sum is not determiners. यहाँ पे sum का इस्तेमाल determiners के तरह नहीं हुआ है. So this which is used example first is determiner, but in another example sum is not determiner because it is not used before noun. यह noun के पहले sum का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए आप sum को pronoun कह सकते हैं. इसे हम determiners नहीं कह सकते. It is not used before noun, so it is pronoun. अभी आपने डिफिनीशन पढ़ा है एग्जाम्पल के साथ. डिफिनीशन में आपने दो फैक्टर को पाया. पहला फैक्टर है इट क्लैरिफाई अ जनरल और स्पेसिफिक नाउन, और सेकेंड फैक्टर है इट लिमिट्स हाउ ए नाउन और फ्रेज अप्लाइज. हम इसे एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं. अब हम एग्जाम्पल के जरिए दोनों फैक्टर को जानने का प्रयास करते हैं. ये डिटरमाइनर्स लिमिट्स हाउ ए नाउन और नाउन फ्रेज अप्लाइज. नाउ वी विल डिस्कस इट्स फैक्टर अलोंग विथ टू डिफरेंट एग्जाम्पल. अब इसके दोनों फैक्टर को हम बारी बारी से एग्जाम्पल के जरिए समझने का प्रयास करेंगे. नाउ ऑन फर्स्ट फैक्टर वी विल डिस्कस विथ एग्जाम्पल. अब एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. ए डॉग बार्क्ड. इन दिस एग्जाम्पल वी डोंट नो व्हिच डॉग बार्क्ड हियर. ए इज यूज्ड इन जनरल सेंस. इसमें हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा डॉग बार्क कर रहा है, इसलिए ए का इस्तेमाल जनरल सेंस में हुआ है. सी अदर एग्जाम्पल. द डॉग बार्क्ड. In this example, a specific dog barked here. So the is used to show a specific. Now we will discuss on second factor, which is it limits how a noun or noun phrase applies. यहाँ पर हम limitation of noun के जरिए determiners जानेंगे. It depends on noun is singular, then the determiner must be singular. If noun is plural countable, then determiner must be plural. Other example, many books. Here many determiner is used according to noun. Noun is given in plural, that is why many is used before. Another example, much rice. Here rice is uncountable noun, that is why much is used according to noun. Now we will discuss about the types of determiners. Students, we will discuss first articles. आर्टिकल तो आप पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इसके पहले टॉपिक में डिटरमाइनर का जो पहला टॉपिक है आर्टिकल, यूज ऑफ आर्टिकल बताएंगे. ए एंड दी आर कॉल्ड आर्टिकल्स. इससे आप पहले भी पढ़ चुके हैं.
ए एन दी को हम आर्टिकल कहते हैं। ए और एन क्या है? इंडिफिनिटिव आर्टिकल है और द डिफिनिट है। नाउ यूज ऑफ आर्टिकल, वेयर वी विल यूज आर्टिकल ए। A or an is used before a singular countable noun, where the is used before uncountable and countable. But students, you have to keep it in your mind. The choice between A and N is determined by the initial sound. So we use A before words that begins with a consonant sound and N before words that begin with a vowel sound A, E, I, O, U. A table, a man, a country, it begins with consonant sound, and a umbrella, animal, it begins with vowel sound. A student, you should remember one thing. We do not normally use a, an before uncountable nouns and adjective. But in some cases, we use a or an before an adjective which is followed by a noun according to the initial sound of the adjective. Example, a useful book. Here, useful book is an adjective. It is just used before noun. That is why a is used. Now we will discuss about the use of the. हम लोग आर्टिकल के बाद ए एन के यूज के बाद हम दी का यूज पढ़ेंगे. As we have already discussed before, that is used before countable noun and uncountable noun. तो हमने पढ़ा है कि द का इस्तेमाल काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले किया जाता है. अब हम इसके डिफरेंट यूज को पढ़ेंगे. फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी केप्ट इन योर माइंड व्हाइल यूजिंग दी. इस पॉइंट को हमेशा याद रखेंगे ताकि दी का इस्तेमाल में आपको कोई परेशानी न हो. वी यूज दी बिफोर ए नाउन पर्टिकुलर और डिफिनिट बाय बीइंग मेंशन फॉर द सेकेंड टाइम. किसी भी नाउन का इस्तेमाल सेकेंड टाइम जब करेंगे उसमें हम दी का इस्तेमाल करेंगे. आप इस एग्जाम्पल को पढ़ें. देयर वाज ए ट्री इन आवर फील्ड. द ट्री वाज ए मैंगो ट्री. यहाँ ट्री का रिपीटेशन दोबारा हुआ है इसलिए हमने द ट्री का इस्तेमाल किया. सेकेंड, ए नाउन मेड डिफिनिट बाय ए फ्रेज और क्लॉज. हम नाउन को दी के इस्तेमाल से डिफिनिट करते हैं, स्पेसिफाइड करते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल, द गर्ल इन ब्लैक ड्रेस इज माई सिस्टर. इससे यह स्टेटमेंट क्लियर हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है ए सिंगुलर नाउन रेफरिंग टू ए पर्टिकुलर ग्रुप और क्लास. कभी कभी हम ग्रुप के लिए दी का इस्तेमाल करते हैं. कभी कभी दी का इस्तेमाल हम रिवर, सीज, ओशन, हिल, माउंटेन्स, गल्फ, आइलैंड, शिप्स इत्यादि के पहले करते हैं. एग्जाम्पल में ले लें द हिमालयाज, द गंगा, etc. नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान दें. कभी कभी दी का इस्तेमाल हम यूनिक थिंग्स के लिए करते हैं जो संसार में अद्वितीय होता है, दूसरा नहीं होता है. द स्काई, द अर्थ, हम इसे नेचुरल फेनोमेनन कहते हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट है द इज यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री. हम द का इस्तेमाल सुपरलेटिव डिग्री में करते हैं. द बेस्ट. नाउ वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक आर्टिकल डिटर्मिनर्स. हम लोगों ने डिटर्मिनर्स का जो पहला टॉपिक था आर्टिकल उसको कंप्लीट कर लिया है. और नेक्स्ट टॉपिक है डेमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स. ये पॉइंट आउट करता है पर्सन और प्लेस को. दिस बुक, दिस बॉयज, दोज मेन, etc. ये हमें पॉइंट आउट करता है व्यक्ति और वस्तु को. पोजेसिव डिटर्मिनर्स, इट शोज ओनरशिप. यह हमें अधिकार दिखाता है. माई हाउस, आवर टीचर्स, हर मदर, देयर होम्स, etc. कुछ ऐसे डिटर्मिनर्स हैं जो मिक्स होते हैं जैसे सम, मेनी, एनी, मच, फ्यू, लिटिल, लेस, फर्स्ट, वन, टू, सेवरल, ईच, एवरी, देयर, नेक्स्ट, etc. Now we found only one thing, that determiner depends on number of nouns. इसका मतलब हमने एक ही बात हमें इसमें स्टडी किया कि
डिटर्मिनर्स का इस्तेमाल नाउन के अनुसार होता है। अगर यह सिंगुलर है तो सिंगुलर डिटर्मिनर, प्लूरल है तो प्लूरल, और अनकाउंटेबल है तो फिर अनकाउंटेबल डिटर्मिनर्स का ही इस्तेमाल करेंगे। नाउ सी एंड स्टडी दिस पॉइंट वेरी केयरफुली सो दैट योर डाउट वुड क्लियर। अपने डाउट को क्लियर करने के लिए इस चार्ट को अच्छे तरीके से पढ़ें। Some determiners used before singular countable noun only. Each, every, either, neither, one, another, many, ये वैसे डिटर्मिनर्स है जो सिर्फ सिंगुलर नाउन के पहले ही इस्तेमाल करते हैं जो काउंटेबल होते हैं। Some determiners used before plural countable noun. Both, few, many, two, three, etc, several, majority of, large number of, ये सभी प्लूरल नाउन के पहले ही इनका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है सम डिटर्मिनर्स यूज्ड बिफोर ओनली अनकाउंटेबल नाउन, लिटिल, लेस, मच, इसका इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है, सम डिटर्मिनर्स आर यूज्ड बिफोर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, सम, एनी, ऑल, मोस्ट, ए लॉट ऑफ, एनफ, इसका इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट वैसे डिटर्मिनर्स जो सिंगुलर, सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव एंड एनी इज यूज्ड इन निगेटिव। कभी कभी हम एनी का भी इस्तेमाल करते हैं अफर्मेटिव में। एनी इज यूज्ड फॉर एम्फेसिस इन अफर्मेटिव सेंटेंस, एनी फुल कैन डू इट, इस एग्जांपल के जरिए ये क्लियर हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, सम डिटर्मिनर्स यूज्ड इन काउंटेबल सिंगुलर, प्लूरल एंड अनकाउंटेबल, यानी दोनों में ही सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल